I'll take you to a century back, probably उसके भी पहले, and talk a lot about leadership. I will take you through a journey, a small story, जो interactive होगी, and you would have seen 100%. I'm very sure. उसके बारे में हम बात करेंगे, but मेरे चश्मे से. I mean, you through my binocular, you see this movie once again. I'll take you through. So this is nothing but the Titanic, a saga of an untold leadership. So ये सब मूवी ऐसा कोई है जिसने नहीं देखी या सुनी हो, हिंदी, इंग्लिश, whatever version? Anyone who has not seen this or do not know about this? I don't think anyone. I think. Right. So the first important thing is, great leaders don't set out to be leader, they set out to make a difference. ऐसा ये corporate jargon है. I'll tell you how this is a flawed thing. It's never about the role, it's always about the goal. कौन HR head है, कौन CEO है, कौन state head है, कौन finance head है. Of course, you have chosen your title to be in a particular company, but it's not about the role, it's about the goal. If you are not meeting the desired perspective, being whatever you have been thrown out of the system, like we were discussing in the morning. So it's about this. The pictures you can see, मैंने एक एनिमेशन फॉर्म में बनाया, तो ये विजुलाइज कर जाएगा कि what I am trying to tell you also. So with this, I'll just take you to the agenda points because it's a group activity. I should not be keeping anything blind. So the thing which we'll discuss is, as shown on your screen, day-to-day events that may or may not lead to desired outcomes in business or in real life. Just 5 पॉइंट है. I will reiterate, day-to-day events that may or may not lead to the desired outcomes. जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है. ये day-to-day popping up चीजें होती हैं, हमको लगता है अचानक से क्या हो गया, but I'll tell you कैसे होता है. Second thing, एक और बड़ा मिसकंसेप्शन है. मैं तो जूनियर हूँ, मेरा बॉस बैठा है ना VP, I am just an AVP. सोच रहा होगा, he must be keeping a track of all the activities that are happening in my function और इन माई कंपनी. CEO बैठा, MD बैठा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. अपना प्रॉब्लम हुआ तो क्या है, जॉब चेंज कर देंगे, फंक्शन बदल देंगे, स्किप कर देंगे. दिस इज वन ऑफ द सेकेंड पॉइंट्स. थर्ड पॉइंट इज, वी टॉक अबाउट चेंज मैनेजमेंट. बहुत बड़ा नया कॉर्पोरेट लिंगो जार्गन है, चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजर. लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट सम लीडर, थॉट लीडर, ऑल न्यू जार्गन्स. इट्स नॉट अबाउट चेंज. इसके अंदर एक सब पार्ट है. Once we see, I have done PhD in maths, so there is something within the maths then we talk about integration, differentiation or whatever. So this is the change management we talk about. उसके अंदर एक 21st century में एक और चीज आई है, that is called as chain management. I am not talking about supply chain, I am talking about some other chain. So we'll talk about this. And next is breaking the rules, the yes man effect. मैं नहीं बोलूंगा बॉस के फेवर में. You know what will happen? HR is sitting as a judge now, right? So the yes man effect, मैं इसको बोलता हूँ. Yes sir, you are a stupid. Yes sir, you are brilliant. Very very yes sir. So we never say no to bosses, right? That's a general trend. That's why my friend has changed 10 jobs, I guess. Yeah. You are asking, I'll answer all these questions. And last but not the least, leaders from the table. I mean, all 5 tables we'll have people. So they will come. They will decode what I said. So that is the activity all about. So be attentive. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूंगा. So that idea is not to test English language. Idea is to test what we understood after having some experience, right? So this is it. Titanic, a fire under the sea. What we say. Name itself suggests. इसका नाम दिया गया था fire under the sea. We all know the reasons. ये मैंने एक टाइटल दिया है, द सिंकिंग ऑफ द अनसिंकेबल. इसके बारे में कहा जाता था, इट इज प्रैक्टिकली अनसिंकेबल. इसको डुबाना पॉसिबल नहीं है. इट वॉज बिल्ट इन सम सेंचुरी विच आई टेक यू थ्रू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट इट एंड हाउ ये कैसे डूबा है, वो लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन. बट एज अ रिसर्चर आई टेक यू टू द जर्नी ऑफ द शिप विद सम शॉकिंग इन्सिडेंसेस. We all know these are just the facts that I have collected from the open resources and all these things. These were the most pivotal tragedies of 20th century that the world has witnessed.
I'm not talking about other tragedies that would have taken, toll of crores and crores of life, atomic bombing and all these things. But yes, this is the tragedy which was easily avoidable, and it sank with many people. This was built in this particular year, 1909 to 1911. I mean 3 years it took. White Star Line Group ने इसको बनाया था और बेलफास्ट में बना हुआ था. इसका maiden voyage, the first voyage happened on 10th of April 1912, and ये सबको पता है, very 3rd, 4th और 5th day, 15th of April, she sank. She मैं इसलिए बोल रहा हूँ, in naval language we don't call ship as it. It's not an object. We call she to give her a respect. It's a mother. So she sank with more than 1,500 people on board, and in a chilling ocean. You can imagine the kind of death all people got, including wives and children and males and females, everybody. Very tragic incidents. But yes, I want to do something about this. Facts, factors and predictions. What do I mean with this? मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ deliberately. You can see the picture itself. It speaks a lot about what Titanic was and what Titanic became. And this is my disclaimer. Sinking of the Titanic was decided 53 years before even it was built. I am not a Jyotishi or some astrologer or astronomer. I am just telling you the fact of the life. इसके बनने से 53 साल पहले इसका डूबना तय हो चुका था. कुछ ना कुछ तो होना था. So let's see what went wrong. There is another ship which you will never would have heard. I am very sure about it. आप कितने बड़े जीके के एक्सपर्ट हो, एक शिप का नाम आएगा. I have taken it as stories of two great ships. One is a Titanic, one is a non-Titanic. So I am talking about the other ship. Her name was nothing but Great Eastern. It was Britain origin ship. Again, it was built in 53 years back, around 1888 तक उसका retirement हुआ था. और the Great Eastern and the Titanic. So what was there? उसमें ऐसा क्या था कि वो आज हम उसका नाम नहीं जानते, Great Eastern का. I am sure किसी को पता है Great Eastern का नाम इससे पहले? नहीं सुना हमने. Even मैंने नहीं सुना था. It was built in 1858, exactly 53 years back. 680 इसकी लेंथ थी और मॉन्स्टर कैपेसिटी ऑफ 4,000 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड. मतलब ये हाफ अ सेंचुरी पहले टाइटैनिक इतना फेमस था, लग्जरियस था, उससे ज्यादा कैपेसिटी रखने वाला शिप था. टाइटैनिक में तो लगभग 2200 पीपल थे, इसमें 4000 का कैपेसिटी था. स्टेट ऑफ द आर्ट, नॉट सो फेमस. फेमस क्यों नहीं है? इसमें भी सेम एक्सीडेंट हुआ था, सेम, बल्कि उससे ज्यादा डैमेज होना चाहिए था. बट शी सर्वाइव्ड एंड रीच्ड न्यूयॉर्क हार्बर. इसलिए हमारी बुक्स में आज नहीं है, हम लोग नहीं पढ़ते ना, इस पे मूवी बनी. बट यस, इट वाज अ विक्टिम ऑफ अ बिजनेस डिजास्टर. वी ऑल आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आइदर एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉइज. इट वाज अ बिजनेस डिजास्टर. लेट्स सी हाउ. 1888 में आप इतना अंदाज लगा लीजिए कि 200 लोगों ने इसको 2 साल तक तोड़ा था to make it as a scrap. When she retired in 1888 after serving about 30 years, it took 200 men for 2 years to break that ship to be sold in scrap. Obviously, as an entrepreneur, we can understand what kind of massive monster it was. Now, what happened? So, how is it related to this guy? पहले तो फेल क्यों हुआ? We all have heard about this in school itself. Suez Canal. सुएज नहर, सुएज कनाल है जो वर्ल्ड को कनेक्ट करती है. एवरीबडी नोस, राइट? सुएज कनाल वाज नॉट ओपन इन दैट सेंचुरी व्हेन दिस ग्रेट ईस्टर्न वाज बिल्ट. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने पैसा लगाया, इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, बहुत बड़ी टीम बनी होगी. जब तोड़ने के लिए 2 साल लगे तो बनाने में कितना लगा होगा? यू कैन अंडरस्टैंड काउंट ऑफ मनी. सो कैनाल, अ शॉर्टकट टू द वर्ल्ड, वाज ओपन्ड व्हेन दिस शिप वाज बीइंग बिल्ट. So Great Eastern could not fit in. The biggest problem was you have created an elephant which cannot cross your lane. It became what? क्या बन गया फिर? क्या होता? One word, white elephant. Redundant. किसी काम का नहीं. रातों रात टर्नओवर खत्म, स्टॉक पूरा जीरो. That happened, dead asset, right?
सो नो आई ऑन फ्यूचर, प्योर प्रेजेंट फोकस्ड अप्रोच. आज में चलता है, कल का किसने देखा है? वी शुड लिव लाइक दिस बट नॉट विद दिस काइंड मैसिव प्रोजेक्ट, राइट? फॉल्टी assumptions. Yes boss effect. उनको नहीं मालूम था कि स्विस कनाल खुलने वाली. Then I say they were dash idiots. कि उनको नहीं मालूम था स्विस कनाल खुलने वाली है. जब वर्ल्ड के लोग स्मॉलर वर्जन्स में जा रहे थे, स्मॉलर शिप्स में जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? Rather than me building a huge monster, I should make 5 little monsters. वो पास तो हो जाते. ये वर्ल्ड की नजर इस स्विस कनाल पे थी. आज पे इस पे बहुत सारी फाइट है. I don't want to name it politically, but yes, you can read the present also. Yes, Suez Canal opened for the world, closing business for Great Eastern. दुनिया के लिए उसने दरवाजा खोला और एक ग्रेट ईस्टर्न के लिए बंद कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस. नाउ व्हाट वुड हैव हैपेंड? क्या हुआ होगा इसके बाद? ये बच गया, सरवाइव कर लिया, और इसका जो भी उन्होंने स्क्रैप वैल्यू डिसाइड की, इसको पैसेंजर शिप बनाया, वॉयज शिप बनाया, क्रूज शिप बनाया, केबल लेइंग शिप बनाया, बहुत सारा नुकसान हुआ, तो कैसे भी मेकअप किया. 1988 में विद लॉट ऑफ बैंक्रप्सी इन्होंने शिप को रिटायर कर दिया. अब इसके टाइटैनिक से क्या लेना देना हो सकता है? जस्ट थिंक, देयर इज नो सस्पेंस नाउ. टाइटैनिक से क्या लेना देना होगा? ऑफ कोर्स व्हेन टाइटैनिक वाज बिल्ट, ग्रेट ईस्टर्न टू टाइटैनिक का जो सफर था, as a designer we already had a precedence of a business failure. So what people did, safety features जो थे, मैं बोल रहा हूँ ना बार बार एक ही वर्ड, 200 लोग 2 साल तोड़ने में लगे थे, उसको बनाने में कितना लगा होगा. सो सेफ्टी फीचर्स जो थे उस लेवल के शिप में, वो टाइटैनिक में कभी पास नहीं हुए. पैसा कौन वेस्ट करेगा? टाइम कौन वेस्ट करेगा? इट वॉज अ कमर्शियल फेलियर. We talk about this particular sentence, word, ROI. ROI कैसे निकलेगा, etc. etc. right? So it was a trade-off when we went to Titanic. कि return of investment versus क्यों बनाया, safety को compromise. Another aspect, emphasis क्या था जब Titanic बना? Boss speed and comfort. इसको state of the art, state of the world art नाम दिया गया था. Titanic के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं. We all know what was the caliber of that ship. Speed and comfort, and believe you me, that was 680. This massive ship was 900 feet plus. इसके साथ इसके 2 सिस्टर शिप और थे. I'll get back to you with the names, Olympic and Britannic. इनका भी नाम हमने नहीं सुना है most of the people, because of course there is no negative news associated with these 2 ships. इसीलिए ये तीनों शिप 900 फीट के थे, much more larger than that was Great Eastern. But yes, safety features के अलावा सब कुछ ट्रांसलेट हो गया. रिजल्ट क्या हुआ जब इन्होंने इसको बनाया? इट वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लैविश शिप ऑफ दैट सेंचुरी. इट वॉज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग पैलेस. वी ऑल नो, बट इट वॉज नॉट अ फ्लोटिंग पैलेस, इट वॉज एक्चुअली अ फ्लोटिंग डिजास्टर. आई सी यू हाउ. सबसे पहले ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे देखते हैं. व्हाट वेंट रॉन्ग? परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं ना, वी वर डिस्कसिंग इन द मॉर्निंग. पब्लिक परसेप्शन क्या था? इस पे बहुत बड़ा रोल होता है मीडिया. आज की डेट में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्कशन करते हैं. दैट टाइम ऑल्सो मीडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे डिक्लेयर्ड दिस शिप एज अनसिंकेबल शिप. ये डूब नहीं सकता. अब ये परसेप्शन किस किस के दिमाग में था? अक्रॉस द वर्ल्ड एवरीबडी हैड. वन लेडी हु सर्वाइव्ड दिस इंसिडेंट actually had blown thousands of dollars, I think $5,000 in that century to buy a single ticket of luxury class of this sea liner. इतना महंगा टिकट था. क्यों? ब्रांडिंग. Now you can see this image, you will find it yourself. Acceptance trials. इतना बड़ा जहाज बना रहे हो, 900 फीट मजाक नहीं होता. 900 फीट का जहाज बना रहे हो आप. एक छोटी सी 12 फीट की कार बनाते हैं, उसके 50 बार ट्रायल होते हैं. इतना बड़ा मैसिव शिप जो 4000 लोगों को लेके या 2200 लोगों को लेके जाने का था, it was trial for only 1 day. 1 day trial था, sea acceptance trial as far as research goes. Even you won't believe when Titanic was about to go for her first maiden voyage, उसके ऊपर एक कारपेट बिछाए जा रहे थे उस समय तक. That means that floating hotel was not ready to accommodate passengers. You know pressure was there. जिसने उसको बनवाया था, डिजाइनर ने उसको बनाया था, सबके ऊपर प्रेशर था. अभी अभी खत्म करो इसको, चलाओ. I have a date, I have a lucky date, 10th को निकालने का है. So many things which are buried under the earth's crust now. But yes, एक और important चीज है जो हम ध्यान नहीं देते.
मोबाइल जैसा अभी सिद्धेश ने बताया, मोबाइल कैन ड्राइव यू क्रेजी। मैक्रोनी कंपनी थी जो जस्ट 3 years old कंपनी थी, बट दे प्रिपेयर्ड और इनोवेटेड अ वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट कॉल्ड वायरलेस टेलीग्राफ। आप लोगों ने सुना है, देखा होगा शिप पे पहले 2222 देयर वाज नॉट सैटकॉम एंड ऑल। उस समय पे दिस वाज द ओनली लाइफलाइन ऑफ द शिप एज फार एज कम्युनिकेशन गोज। सो दिस वाज द लाइफलाइन ऑफ द शिप व्हिच वाज ऑल्सो बिल्ड, वो भी लगा था उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी थी। बट एक प्रॉब्लम था, लैग एडॉप्शन एंड एसओपीज। अडॉप्ट ही नहीं हुआ था, बस लोगों को पता था ये बेस्ट मैकबुक रखा है, अब इसको क्या यूज करने का है मालूम नहीं मुझे। ओके हाँ, सबसे बड़ा शॉक, दिस वायरलेस टेलीग्राफ वाज यूज्ड फॉर पैसेंजर्स कम्युनिकेशन। Dr. Vedehi is there. She's a premium customer of mine, premium passenger. Amya Russell is a very expensive man. Ma'am, would you like to make a call? All yours. अब Vedehi फोन कर रही है घर में. I am sailing with a 4,000 rupees dollars ticket. I am with my friends. How are you? That was decided by whom? Suyog, for example. I am not keeping an eye what is happening. Because that was a telegraph specifically used for what? You can understand. It was not an amusement telephone. It was used. Captain, you all would have heard. This is a real pic. So Captain was having a 40 years unblemished record. What I am telling you guys are all facts and figures and research material. I am not creating any story over it. These are all facts I am going to present. Because this is not a session, this is a group session. So 40 years का उसका अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड था कैप्टन स्मिथ का, एक भी एक्सीडेंट नहीं, फ्लॉलेस। अगर आपका ऐसा बॉस हो, उससे आज तक एक भी मिस्टेक ना हुई हो बिजनेस में, आपके लिए तो भगवान है, राइट? तो ये एक वो था। लेकिन यू अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट, नाउ यू कोरिलेट। कैप्टन भी इंसान था ना, उसके दिमाग में क्या था पता है? अनसिंकेबल शिप, क्योंकि मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि डिजाइनर्स ने बोल दिया था, क्योंकि डिजाइनर्स को जिन्होंने इन्वेस्ट करने को बोला था बनाने के लिए, उन्होंने बोल दिया था। सो यू सी व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज परसेप्शन मैनेजमेंट इज रॉन्ग। कैप्टन अपना एसओपी छोड़ दिया, अनसिंकेबल चला रहा, डूबेगा ही नहीं, कोई भी चला सकता है। नाउ मिस्टेक कोन, आई कॉल इट एज अ मिस्टेक कोन। कोन यू नो, सबको शेप मालूम, ऐसे जाता है या तो फिर ऐसे जाता है। It's either this way or that way. Depends where you start with. So mistake cone set by leaders. This happened. Just close your eyes and think. This happened in every organization that we are working, every business that we are working. ये एक ना एक बार हुआ रहेगा सबके साथ। ये भी सब आंसर मिलेगा सुबह जो हम डिस्कस कर रहे थे। So captain's perception, ship was unsinkable. You know what happened thereafter. Clear weather. अभी captain was not mad. He had 40 years of 4 decades of experience. He was not mad. He knew what is happening. But the environmental factors, clear sky, बिल्कुल कोई रफ वेदर नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक सब दिखाई दे रहा है, कहीं कोई वेदर वार्निंग नहीं है, there is no harm, there is no problem. तो extremely poor judgment. अरे ठीक है, सब चलता, हाईवे क्लियर है. You know most of the accidents happen at highway only, or dreadful accidents. Crew did inform captain regarding the warnings. आपने अगर मूवी भी देखी हो, बेचारा based on fact, बेचारा क्रू आया था बताने, सर there is a iceberg warning, there is मौसम का warning, there are so many warnings. He said okay cool, no problems, I am with control. Blurred captain to ignore numerous warning. अभी जो environmental factors थे, टेलीग्राफ लगा है, अनसिंकेबल शिप है, मौसम क्लियर है, I am under control, कुछ होगा तो देखेंगे, don't worry. क्रू रिलैक्स्ड, क्यों हुआ रिलैक्स क्रू? मैं गया कैप्टन के पास, इमेजिन आई एम द कैप्टन, यू एनी वन ऑफ यू कम से सर वार्निंग है, गेट मी अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, आई एम अंडर फुल कंट्रोल. सो विद माय 4 decades of experience and yours may be 3-4 years, you will think Mohit is correct, he is the captain, उसको सब पता है, वो कूल है, हम क्यों अपना दिमाग लगाएंगे? करेक्ट, ह्यूमन परसेप्शन. मैं ज्यादा बोलूंगा तो कैप्टन डांट देगा, लीव इट, आएगा आइस तो देखेंगे. Mistake cone by set by leader. Now what has happened? That was happening with Vipin Poladi in the morning when you were asking you a question. वो फंस गया.
Even the best HR present right now could not answer him because he got into the vicious circle. Crew became empowered to take decisions. Your MD would have not told you to kick off any guy out of the job. But if I hit his ego, he is my boss, he will do goddamn to kick me out. फिर कोई काम नहीं करता कोई फंडा. Maybe I am the best manager, maybe I am the best number maker. एक बार perception management हो गया तो हो गया. मेरा कैप्टन नहीं सुन रहा तो I start running my state alone. That's what happens. राइट फिर मैं जिसको फीड कर दूं वो ए स्टार है, जिसको नहीं किया वो बी है. राइट. आई वॉज टॉकिंग अबाउट चेंज मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट इट्स अ सबसेट. हम लोग ये चेंज चिल्लाते रहते हैं. चेंज लाता कौन है? जब तक आप चेंज मैनेजमेंट नहीं करोगे चेंज मैनेजमेंट होगा कैसे? इस पूरे विशेष सर्कल में दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इस पूरे विशेष सर्कल में एक भी आदमी नहीं था जो हिला दे कैप्टन को. He was doing all things wrong. Everybody knew. It was not a technical question, but it was a matter of judgment. ये technical question नहीं था कि मोटर खराब हो गई है, engine खराब हो गया, सब कुछ सही था टाइटैनिक के साथ. It was a matter of judgment. And who can judge this captain? ये 4 डेकेड पुराना आदमी है, तो कैप्टन के जजमेंट को कोई जज करने या चेक करने को रेडी नहीं था. That was first problem. First warning आई, we all know, captain was in party. कैप्टन पार्टी बना रहे थे क्योंकि जब कैप्टन नहीं होता, फॉर ऑल दोज हु आर नॉट फ्रॉम नेवी, आई टेल यू, कैप्टन 24 घंटे वॉच नहीं कर सकता, नहीं चला सकता शिप. तो कैप्टन हार्डली कम्स टू ब्रिज और बाकी उसके जितने ट्रेन्ड ऑफिसर्स है ना, ऑफिसर ऑफ द वॉच, वो उसके बिहाफ में ड्यूटीज करते हैं. कैप्टन को जब बुलाया जाता है व्हेनेवर दे आर इन डाउट. एक सिंपल नियम है अक्रॉस द नेवी वर्ल्ड में, व्हेनेवर इन डाउट कॉल कैप्टन. कैप्टन बस डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा है, जहाज चलाने का काम नहीं है उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आ जाती. सो फर्स्ट उसमें ही वॉज इन पार्टी. ऑफिसर्स जो थे वहां पे ब्रिज पे वो अपनी ड्यूटी कर रहे, जहाज चला रहे थे. सेकंड वार्निंग, ही रिटायर्ड टू हिज केबिन. जब तक सेकंड वार्निंग आई वो अपने केबिन में रिटायर होके चले गए. एज शी सेड ना, रिटायरमेंट इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज ऑल्सो रिटायरमेंट. यू रिटायर टू योर केबिन. थर्ड वार्निंग का क्या हुआ होगा? एनीबडी, एनी गेस? एक और वार्निंग आई थी. बाय द वे देयर वर 7 वार्निंग्स दैट डे. I'll tell you as per recorded history. थर्ड वार्निंग में क्या हुआ होगा? एनी गेसेस? पहले में गए पार्टी में था, दूसरे में गए वो केबिन भाग गया, तीसरे में क्या हुआ रहेगा? एनी गेस? एनीवन? हैं? किसने? बोलो ना भाई. सही, यू आर करेक्ट. बिल्कुल. क्या फायदा है? ठीक है. थर्ड वार्निंग नेवर रीच्ड हिम. उसको पता है क्या हो रहा है. अभी बॉस यही बोलने वाला है ना, चाय लाओ, रेस लगाओ. आई डोंट नो, दैट वाज नॉट देयर इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री. उसके दिमाग में क्या था व्हेन ही वाज गोइंग फुल अहेड मतलब 5th गियर ऑन, भागा जा रहा था. टाइटैनिक कोलाइडेड विद आइसबर्ग एंड वी नो ऑल व्हाट हैपेंड. सो उसके बाद क्या हुआ? इतना हो गया, अभी भिड़ गए. योर बिजनेस वेंट फॉर अ टॉस, समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके, एक्शन पोस्ट इंसिडेंट देखते हैं. आपको लगता है सबको इसको बचाया जा सकता था? एनीवन? जस्ट रैंडम क्वेश्चन. 1500 लोग मरे थे, इतना बड़ा जहाज था, अरेंजमेंट नहीं थे क्या? अरेंजमेंट थे, बचाया जा सकता था कम से कम ज्यादा क्वांटिटी में. हार्डली 700 पीपल वर सेव्ड, 1500 डाइड इन दैट चिलिंग ओशन. तो क्या गलत हुआ? उसके बाद भी कुछ गलती हुई हो? वी ऑल हैव सीन द मूवी. तो कैप्टन को भिड़ने के बाद भी पता नहीं चला कि मेरा लॉस कितना हुआ है. भिड़ने के बाद भी पता नहीं चला लॉस कितना हुआ है. बिकॉज व्हेन दिस आइसबर्ग वार्निंग्स वर कमिंग, ही जस्ट हैड टू गो ऑन द ब्रिज एंड यूज्ड टू से समथिंग कि बॉस, आर यू अंडर कंट्रोल, आर यू नर्वस, आई टेक ऑन इफ रिक्वायर्ड. ही डिड नॉट डू दैट. ओके, सो सडनली ही बिकेम सीरियस आफ्टर दैट वार्निंग. एकदम से उसको समझ में नहीं आया क्या हुआ. क्या भिड़ गया, ठीक है, जहाज भिड़ते रहते हैं, बड़ी बात नहीं है. दिमाग में था ना अनसिंकेबल है. सेकंड, जब डिजाइनर ने आके बोला उसको ना, बॉस मैं डिजाइनर हूं, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोना सिंक विद इन 2 आवर्स. इतना सुनने के बाद एज अ कैप्टन 2 ही चीज होंगी आपके साथ. वो 40 इयर्स किनारे कर दो. अभी 2200 लोगों का जिंदगी इंक्लूडिंग योर्स आप लेके ट्रैवल कर रहे हो, वर्ल्ड का सबसे रिनोन जहाज है. 2 ही चीज हो सकती है ह्यूमन के साथ. या तो वो स्टेट ऑफ शॉक में चला जाएगा जो गया है, और या तो फिर he'll start taking proactive experience based on his experience of 40 years. So initially for 30 minutes he did not take any action.
He was doing something, बात कर रहा, चीज कर रहा, लेकिन he did not take any concrete action. And in the case of distress management, it is only the captain's voice which is being heard initially. नहीं लिया 30 मिनट कुछ, अब क्या हुआ होगा? Crew anticipated their own actions. अरे भाई मेरे को नहीं मरना है, मेरे डेक पे मैं खड़ा हूँ, या आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो 30 guys, मैं इधर इंचार्ज हूँ. I should ensure that none of you 30 should die. I am not caring about the second section of the hotel, right? Crew started forming sub captainship. इस सेक्शन का मैं कैप्टन हूँ, मेरा क्रू नहीं मरना चाहिए बॉस. सेक्शन इंचार्ज होते थे, राइट? So they started taking their own action. अभी मैंने बोला बाहर नहीं जाने का और यहाँ आग लग रहा है, डूब रहा है, कितनी देर रुकूंगा मैं? You will kick me off and go. तो crew also started taking action. अभी कैप्टन के पास कैप्टनसी रह नहीं गई. नेक्स्ट, लाइफ सेविंग बोट्स. कोई भी जहाज डूबता है, यू वुड हैव सीन दिस, लाइफ सेविंग बोट्स होती है. लाइफ सेविंग बोट उतनी होनी चाहिए जितने क्रू की कैपेसिटी है. आपकी गाड़ी में अगर 4 सीटर है तो 4 सीट बेल्ट होना मांगता है, करेक्ट? यू कैन नॉट हैव 2 सीट बेल्ट. आजकल वो आता है ना सेमी ऑटोमेटिक सेकंड टॉप वर्जन, आई विल हैव ओनली 2 सीट बेल्ट. पीछे बच्चे बैठे उनका कौन देखेगा? नहीं, कंपनी ने डिजाइन नहीं किया है. दिस इज डैश, यू कैन फिल द डैश. सो लाइफ बोट्स इनिशियली जो लाइफ बोट निकले, ऑब्वियसली टॉप डेक से निकले, अपर पोर्शन ऑफ द शिप. अपर पोर्शन किसको दिया था? एक्सपेंसिव पैसेंजर्स. It was given to expensive passengers who can afford. So expensive passengers had elite group. So they all went with what? तुम्हारा नाम बार बार ले रहा हूँ because you are in front. So don't worry. So Sylvia is an expensive passenger for me. So what I did, Sylvia, please, red carpet for you. So Sylvia chose, और they decided कि ऐसे 12 लोग हैं, तो लाइफ बोट went with 12 people, जबकि एक लाइफ बोट वाज डिजाइन फॉर 65 पीपल. वो भाग गई 12 बोट के 12 13 लोगों के साथ, जिसको आया भगाया. वो आदमी ये प्लान नहीं कर पा रहा था कि ये देखो, ये क्रू की गलती नहीं है, क्रू तो अपनी जान बचाएगी. यू अंडरस्टैंड दिस? इसको लोअर कौन करता है, इसको नीचे कौन उतारता है? शिप का क्रू. शिप के क्रू को मालूम था कि यार इसमें कैपेसिटी 65 की है. अगर मैं होता तो मैं बोलता नहीं यार, पहले पूरा गाड़ी भरने तो फिर जाएंगे अपन. जहां सिल्विया ने बोला मोहित, आई एम दिस, आई नो हु इज सिल्विया. सिल्विया गो, मैडम यू ऑल्सो गो, यू ऑल्सो गो, यू ऑल्सो गो. आई वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट द मोमेंट, बट आई वॉज क्रिएटिंग वॉट, अ वैक्यूम. लेटर जिस बोट में 65 जाने का था उसमें 12 गए, मतलब बाकी का क्या हुआ? वी कैन थिंक. बाद में जो बोट गई उसमें 120% लोग, मतलब 70-80 भी गए. कूद रहे हैं लोग, मुझको नहीं बिठाओगे तो मैं मार दूंगा, तुमको फेंक दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कियोस हुआ, बट ओवरलोडेड. एक नियर बाय शिप था, ये यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई. एक नियर बाय शिप था, उसका नाम था कैलिफोर्नियन. उसमें भी एक बड़ा अच्छा मजाक हुआ. उसका टेलीग्राफ ऑपरेटर देख रहा था, व्हेनेवर अ शिप कम्स इनटू डिस्ट्रेस, वो एक फ्लेयर उड़ाता है, रॉकेट जैसे, जैसे हम लोग दिवाली और दशहरे और फायरवर्क्स करते हैं ना, उड़ाते हैं. तो भी फॉलो कर रहा. थोड़ा बुद्धि नहीं लगाया कि इतने सारे शूटिंग स्टार एक कोने में आएंगे क्या? इट वाज अ शूटिंग स्टार. और दूसरा टेलीग्राफिक ऑपरेटर बोला अभी ठीक है, लेट मी क्लोज इट. उसने अपनी वॉच बंद की, अभी ये सो गया तो मेरा प्रेजेंटेशन हो गया, फॉर एग्जांपल. तो देखो, पता नहीं. सो यू नो दैट टेलीग्राफ ऑपरेटर स्लेप्ट, सिक्योर किया अपना हैंडसेट और सो गया. वो तो कोई पैसेंजर को भी अपना ट्रैफिक बेच नहीं रहा था. टाइटैनिक वाला तो लगा था पैसा देके आप मैडम ट्रंक कॉल कर लो एक्सेट्रा. ही स्लेप्ट. और अगले दिन उसको सुबह पता है, जिसको मैं देख रहा था शूटिंग स्टार, और जो बेचारा मेरे को टेलीग्राफ में मैसेज मार रहा था, डिस्ट्रेस बचा लो मेरे क्रू को, दैट वाज पुअर टाइटैनिक. तो कैलिफोर्नियन वाज द नियरेस्ट शिप दैट वुड हैव सेव्ड दिस, बट बिकॉज ऑफ वही चेन ऑफ कमांड, अरे ठीक है, नीचे वाले ने ऊपर वाले को बोल दिया, वो सो गया, ठीक है. टाइटैनिक सैंक विद 1500 प्लस लाइव्स ऑन बोर्ड. So suppose this is a you can say door, ठीक है? ये डोर आपको दिख रहा है. This door in the world cannot be watertight. I can claim it as a design. Whoever is engineer can challenge me, because this design, you no matter what you put in, इसमें से पानी आएगा ही आएगा. This design is a flawed. It's not a flawed, but it's a design. On board ships, this is never square or a rectangle. This is always round. बट दरवाजे हर जगह राउंड नहीं कर सकते आप. सबमरीन में होते, शिप्स में नहीं हो पाते. शिप्स में भी कहीं उनको राउंड वो गए. बट इसका एक तोड़ है, देयर इज अ
key to it. You make this height इतना बड़ा, bulkhead का height, this is watertight. So people make it इतना height 1 फुट या 1.5 फुट का height का बनाते हैं, उसके ऊपर दरवाजा लगाते हैं ताकि in case of flooding this shape with withhold watertight integrity of a ship. इसलिए कोई भी शिप में जाओ, स्टार लाइन में जाओ, वॉरशिप में जाओ, पाकिस्तान की शिप में जाओ, इंडिया की शिप में जाओ, हमेशा देखना दरवाजा आपको ऊपर से चढ़ के निकलना पड़ता है. सिंस दोज लेडीज स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ पर एलीट, अभी ये ऐसा पैर उठाएगी मैडम एलिजाबेथ तो डिजाइनर, वो क्या है भाई, नौकरी वोकरी चाहिए कि नहीं, कट इट, कॉम्प्रोमाइज्ड. बल्कहेड वो जो ऐसे मैंने आपको बताया ना प्लेट्स, वो नीचे बॉयंसी होती है तभी इतना लोहे का शिप सरवाइव करता है, उसके अंदर एयर होती है, उसका हाइट कम कर दिया, 2 कंपार्टमेंट और नीचे पैसेंजर के बना दो. इट्स लाइक आपका एयरक्राफ्ट 100 पैसेंजर लेने के लिए बना है, मैंने उसको बोला एक काम करना है यार, मैं इंडिगो पार्ट 2 थोड़ा बढ़ा देना इसको पीछे से. दैट इज पॉसिबल व्हाट, यू कैन डू दैट, बट उसका पूरा एरोडायनेमिक्स विल गो फॉर अ टॉस. सो पीपल डिड दैट एंड क्लेमिंग इट वाज अनसिंकेबल. So these are the factors. I can keep on going for the whole night because it's a very big story, very big research. But the point is ये सब टाइटैनिक के मिलने के बाद पता चला, और जो सर्वाइवर है सबको जोड़ा. Movie is just a glimpse of it. I would request Manisha and Sylvia to please hand over the. One group.